Today what we will do, we will have an interactive session in respect to section 1 to section 12 of the Limitation Act. I will put a small questions and I will expect the answers from you all. Please mute all your videos first. Secondly, I am already giving a serial number. ठीक? At present, first of all, Subham will start to answer from the question 1. If he is unable to answer, anybody may raise his hand or say. Thereafter, second question will come to Sunny, then with Lucky, and then Neelam ji, so and so forth. Right? हम इस तरीके से आज काम करेंगे. ठीक है? So the first question of mine is in respect to कि जो Limitation Act है, whether there is any exception of territory in Limitation Act or the applicability of the extent of Limitation Act. Any answer from anybody? Raise hand, then answer. Sunny, go on. तो फॉरेन कंट्री के ऊपर ये लागू नहीं होता. All right. मेरे सवाल को आपने सुना? All right, Neelam ji. So as per section 1, the exception is only the territory of Jammu and Kashmir, which is not applicable anymore after the it has become a unit territory. Redundant and clause. is not a separate. And now you need yes. not to repeat it again and again. It is a clear cut. You simply have to say there is no exception. One. Secondly, now the other issue which comes is, Sunny, you are saying something about foreign country. So always just listen the question very carefully. When I said that we will try to cover from section 1 to 12, most likely the question of mine will start from the first section, most likely. So at least just listen the question very carefully. All right. Who will tell me that what is the meaning of term void? And I will request all of you to close your bare X and notes. अगर पढ़ के ही मुझे बताना है तो कल 24 घंटे में पढ़ा क्या आप लोगों ने पिछले 2 दिन में? वो तो बेर एक्ट से पढ़ के तो बता ही दोगे ना. यहाँ राजीव गांधी वाली प्रतियोगिता थोड़ी हो रहा है जैसे राजीव गांधी ने खुली किताब वाली एक दुकानदारी शुरू की थी. दैट्स नॉट गोइंग ऑन हियर. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म वॉइड? जो सेक्शन 2D में हम बात करते हैं कि भाई ये वॉइड होगा, वो किस बारे में, किस इफेक्ट के बारे में बात करता है? कोई बता सकता है? So in legal language, it's kind of not valid. बेटा मैं वॉइड की परिभाषा नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूँ सेक्शन 2D लिमिटेशन एक्ट में जो वॉइड वर्ड आया है वो किस लिए आया है? आपने शायद पढ़ा नहीं, चूंकि पुराने लेक्चर्स आपने अटेंड नहीं किया, खुद पढ़े नहीं, तो इस वजह से थोड़ा कंफ्यूजन है. ऑल राइट, नीलम जी शायद हाथ उठा रही है, बताइए. This is in respect of a bond. That bond is like a contract. So a bond will be void if the conditions attached to the bond are not fulfilled. Bas? Any other thing? So the condition could be to do something or to abstain from doing something. And if that condition is not fulfilled, then bond would be void. And yeah. What a good word to use. Void will be void. Right. So basically section 2D speaks about a contingency when somebody has promised to do something or has been bound by an authority to do something or to refrain from doing something. It speaks about a positive and as well as negative covenant imposed upon a person, and it will be void if the obligation as imposed is performed. Right? आपसे कहा कि आप वहां नहीं जाएंगे वरना आप पे 5,000 रुपए का जुर्माना लग जाएगा. तो अगर आप नहीं जाएंगे तब तक आप सेफ हो,
यानी कि बाकी बची हुई कंडीशन जुर्माना लगने की गायब। आपको फलाना काम इतने दिन के अंदर करना है, आपको हर हफ्ते कोर्ट आना है, हर हफ्ते थाने जाना है, आप जाते रहे, नहीं तो आपको 5,000 रुपए देने पड़ेंगे। तो आप जाते रहे तो वर्ड नहीं गए तो 5,000 रुपए इन्वोक हो गए। सो इफ यू आर फॉलोइंग द कंडीशन इन इट्स स्पिरिट, the rest of the part will not become operative. If you follow in different scenario or does not follow the condition as imposed, being positive or negative, it will revive the rest of the part. Right? All right. Define general terms. What do we mean by good faith? मोटी बात बताओ गुड फेथ के बारे में, क्या मोटी बात लिमिटेशन एक्ट कहता है? एनी अदर पर्सन? कोई और? हाँ सनी। It is an act done with due care and diligence. जो कार्य में कि कोई भी प्रूडेंट मैन किसी कार्य को करने के लिए ध्यान रखता चीजों का, उन चीजों को ध्यान में रखते हुए वो कार्य किया जाए, तो वह गुड फेथ में किया जाएगा, जहाँ पे नेग्लिजेंस ना हो। सर योर माइक इज म्यूट। आपका माइक ऑफ है। हाँ, लिमिटेशन एक्ट इसे किस तरीके से डिफाइन करना शुरू करता है? निगेटिविटी के साथ या पॉजिटिविटी के साथ? पॉजिटिव इंटेंशन। नहीं, कोई तुक्का नहीं चलेगा। यस सनी। सर उसमें तो कुछ डीम्ड करके था सर। उसमें ये कहता है कि नथिंग शैल बी डीम्ड टू हैव बीन डन इन गुड फेथ, मीनिंग देयर बाई इट स्पीक्स अबाउट negative convention. It speaks and says that if you want to get your work or act governed and deemed to have been done in good faith, then you have to do certain things. Meaning thereby, until unless you fulfill certain criteria, and what is that criteria? Due care and attention. Until unless you fulfill these due care and attention, 4 words, any act done by you will not be deemed to be done in good faith. So it is in negative terms. It says nothing shall be deemed to have been done in good faith, meaning देवा आप कुछ भी कर लो, बढ़िया से बढ़िया काम करा आपने, कुछ भी कर दिया, गलत सही हम मुद्दा ही नहीं उठा रहे, लेकिन अगर गुड फेथ की बात करेंगे तब तक नहीं मानेंगे जब तक कि जो तुमने किया है वो ड्यू केयर और अटेंशन के साथ नहीं किया। और ड्यू केयर एंड अटेंशन का क्या क्राइटेरिया है? जैसा अभी सनी तुमने बोला कि भाई एक जो रीजनेबल आदमी है, जो उस व्यवस्था में, उस अवस्था में, उस परिस्थिति में वैसा कार्य करता या उस कार्य को उस तरीके से करता जैसे कि वो अपने लिए कर रहा हो, तो वो कहा जाएगा ड्यू केयर एंड अटेंशन। क्योंकि ये उम्मीद की जाती है कि हर व्यक्ति अपना ध्यान, अपनी चीज का ध्यान, अपनी प्रॉपर्टी का ध्यान, अपने रिश्ते का ध्यान वैसे ही रखेगा समझदारी के साथ। जबरदस्ती कोई भी व्यक्ति कालिदास बनके जिस पेड़ पे बैठा है उसकी डाली नहीं काटेगा, राइट? नेक्स्ट, वेयर डू वी फाइंड पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एनी प्रोसीडिंग इन द लिमिटेशन एक्ट? हमें कहां से पता चलता है कि किसी चीज के लिए कितनी लिमिटेशन है? यस, एनीबॉडी? The schedule attached to the act. कितने शेड्यूल में कितने आर्टिकल हैं? किसी ने खोल के देखा या रट के पहुंच गए यहाँ? बहुत सारे हैं। बहुत सारे की कई गिनती तो खत्म होती होगी ना। 1 है, 10,000 हैं, 2 हैं कि 50 हैं? किसी ने देखने की 50 से तो ज्यादा है, 50 से तो ज्यादा है। किसी ने देखने की कोशिश की? एक सवाल आप अपने दिमाग में रखिएगा, आप लोग जब फ्री होंगे तो देखेंगे कि क्या 137 या समथिंग होने चाहिए। आई थिंक 137 है। तो जितने भी हैं आप लोग देखेंगे और उसके बाद फुर्सत निकाल के हर आर्टिकल को पढ़ेंगे, राइट?
कि वो किस किस चीज पे एप्लीकेबल है, क्योंकि हर कंटिजेंसी के लिए, हर प्रोसीडिंग के लिए कहीं ना कहीं उन्होंने लिमिटेशन डिफाइन करने की कोशिश की है, राइट। नाउ सनी उठा के देख रहा है कितने, सॉरी लकी देख रहा है, ऑल राइट। अच्छा चलिए एक बात बताइए कि प्रेस्क्राइब्ड पीरियड ऑफ लिमिटेशन जो वर्ड आता है हमारे लिमिटेशन एक्ट में, उसका मतलब क्या है? बताइए, कौन बताएगा? प्रिस्क्राइब पीरियड वह पीरियड होगा जो एक्सक्लूजन कॉज ऑफ एक्शन जब से अराइज हुआ तब, और एक्सक्लूजन अप्लाई, एक्सक्लूजन दे रखी है सेक्शन 4 से लेके 12 तक, 4 से लेके 24 तक। उसको दोनों को कंप्यूट करने के बाद जो पीरियड आएगा वो प्रिस्क्राइब पीरियड कहलाएगा। आपकी आपको वॉल्यूम म्यूट नहीं है। आ रही धनंजय जी। कम से कम शब्दों में इस बात को बोल के बताओ, शब्द कम से कम खर्च करें। जब पीरियड ऑफ लिमिटेशन को कंप्यूट जब एक्सक्लूजन के साथ करा जाएगा तो जो पीरियड निकल कर आएगा वह पीरियड प्रिस्क्राइब पीरियड कहलाएगा। यस, सिंपलीसिटर कह सकते हैं कि पीरियड ऑफ लिमिटेशन कंप्यूटेड इन अकॉर्डेंस टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, प्रोविजंस, सिंपल, and definitely subject to the exceptions as carved out under section 4 to 24, and that is the difference between the period of limitation and period of prescription. इसी से पता चलता है कि पीरियड ऑफ प्रिस्क्रिप्शन या है या प्रेस्क्राइब्ड पीरियड जो है वो हमेशा लिमिटेशन एक्ट के या तो बराबर होगा या उससे ज्यादा होगा, उससे कभी कम नहीं हो सकता। एक्सेप्ट कहां हो सकता है? कोई एक्सेप्शन याद है कहीं ऐसी जहां हो सकता हो? कोई उदाहरण बताइए। सेक्शन 5 सर सर 2 जगह पे दिया गया वो, एक सेक्शन 6 के अंदर लीगल डिसेबिलिटी क्लॉज में, और दूसरा जब आप और एडमिनिस्ट्रेटर की बात कर रहे हैं जिस सेक्शन के अंदर। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेटर वाले में कम बोलो, उसमें सर लिमिटेशन रन ही नहीं होती। मेरा सवाल देखो, सवाल को ना कंफ्यूज मत करो। मैंने जो वो तो एक अलग मसला है, लिमिटेशन रन हो रही नहीं। मेरा सवाल क्या था? मेरा सवाल ये था कि क्या प्रेस्क्राइब्ड पीरियड ऑफ लिमिटेशन से कहीं कम भी हो सकता है? अगर होगा तो कहाँ? स्पेसिफिक सवाल पूछा, स्पेसिफिक जवाब दो। कोई एक उदाहरण के साथ बताओ मेरे को, गिव मी एन एग्जांपल। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दें। क्या कभी प्रेस्क्राइब पीरियड ऑफ लिमिटेशन जो है वो पीरियड ऑफ लिमिटेशन से कम हो सकता है? अगर हाँ तो उसका कोई उदाहरण बताओ। So this is in case where benefit of disability is given in extension of the prescribed period to a person. So in that case, after the cessation of the period, the time of limitation is given 3 years, irrespective of whether the schedule provides limitation for 12 years or whatever time the limitation provides, because we want to give finality to the proceedings, or you say to the rights of the other person. We cannot keep the limitation going on for any indefinite period or for such a period which will make the limitation itself redundant. Example के साथ बताइए, suit for. So in case of a suit for possession, in that case the period of limitation is 12 years. So a person who has been maybe for 10 years, he may have been deared or whatever, he has all the 3 disabilities that are provided. So he will be left with only 3 years and he will not be granted 12 years from the date of cessation of his disability. तब तो 13 साल हो गए, उसे कम करो। ऑल राइट, सो आंसर बिल्कुल ठीक है, उसे थोड़ा वो 10 साल मिनिमम 3 years तो मिलेंगे ही, मतलब he will not get 12 fresh 12 years उसकी लीगल डिसेबिलिटी सीज होने के बाद उसको एग्रीगेट में 3 साल मिलेंगे। 3 साल के दौरान उसको या तो सूट डालना होगा, नहीं तो वो बार्ड हो जाएगा। ऑल राइट,
तो जनरल टर्म्स में बहुत ही सी बात ये आ गई कि प्रेस्क्राइब पीरियड इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में come to lesser than the period of limitation as prescribed in the schedule, subject to the condition when a person is trying to take the benefit of the disability clause, because limitation has been fixed only extendable by 3 years after the cessation. So there is a possibility that a person who would have get more years for filing that proceeding could now get lesser, because a person who is 16 years of age could have filed a suit for possession for within 12 years, but now, as of now, as he was taking the benefit of seizability clause, right, he will file the suit within 3 years. लेकिन प्रश्न मजेदार यहां ये है, अगर वो कोर्ट में आके कहे ही ना कि भाई मैं माइनर हूं, नहीं हूं, मेरी प्रॉपर्टी तो फलाने दिन ली थी, इतने दिन हुए, तब भी क्या कोर्ट उसे 3 साल में बाउंड कर सकती है? नहीं, तो उसने पहले लेट फाइल किया, 10 साल के बाद फाइल किया। नहीं, एक बार रिपीट करना एक बार प्लीज। मैंने आप लोगों को कहा कि एक आदमी 16 साल का, एक बच्चा था 15 साल का था, 14 साल का था, पजेशन का सूट फाइल करना था, वो नहीं फाइल कर सकता था माइनॉरिटी के बाद। फिर उसने जो है जाकर जो है 6 साल बाद मुकदमा फाइल किया, या 7 साल बाद, 8 साल बाद मुकदमा फाइल किया। अब कोर्ट क्या उससे ये कह सकती है कि भाई तुझे 3 साल में आना था, तू नहीं फाइल करा, घर चला जा अपने? The court can't say that because he still has the period of limitation of 12 years from the initial date when the cause of action arose. If from the date of cause of action arises, he's still within the 12-year period, then this is like in that what is the benefit of disability clause then? ये आपने तो उसे चूज करने का राइट दे दिया। सर डिसेबिलिटी खत्म भी उसी हो गई ना 18 साल के उम्र। Write down a question and research. Write down. हवा में बातें नहीं, write down a question. नहीं, मिनिमम पीरियड ऑफ 12 इयर्स तो हर एक को अवेलेबल है ना। तो डिसेबिलिटी अगर उसकी 10 साल की हो गई, उसके बाद उसको 3 साल मिलेंगे, एंड ही उसके बाद उसको 12 साल नहीं मिलेंगे। तो कभी बट इफ ही स्टिल विद इन द 12 इयर्स, वो तो नॉर्मल क्लॉज के हिसाब से उसको मिलेगा मिलेगा। फिर तो आपका आंसर गलत हो गया, फिर तो कभी भी पीरियड ऑफ प्रेस्क्राइब पीरियड लिमिटेशन से कम हो ही नहीं सकता। नहीं, फिर तो आंसर गलत हो गया। तो आंसर तो शुरुआत में आपका अलग था, अब अलग है। अगर उसे जो है एक्सटेंशन नहीं मिलना है तो हमेशा उसके पास ज्यादा होगा। नो, दिस इज नॉट द एक्सटेंशन। सपोज उसको 5 साल में वो मेजर हो गया, अनदर 6 इयर्स ही फाइल्स द सूट, 6 + 5 इज 11, विद इन 12 इयर्स उसने कर दिया। तो डिसेबिलिटी क्लॉज का तो उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। अगर वो 12 साल में नहीं करता है तो क्या होगा? हाँ, फिर वो क्लॉज लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा। तो सर उसको 3 साल का समय तो मिलेगा ही ना। ऑब्वियसली 3 साल तो मिल गए ना, 7 साल हो गए अब तो। 3 साल तो मिल चुके, उसके बाद तो 7 साल हो गए। फिर उसका बेनिफिट किसी भी चीज का नहीं मिलेगा, वो आउट है, आउट, दोनों तरफ से आउट हो गया वो। किसी और का कोई और जवाब? सर अपना क्वेश्चन लिखवाओ एक बार। क्वेश्चन लिखिए। वेदर a person who was unable or disable to file a suit or proceeding due to his disability has always to file it within 3 years of the cessation of disability. Explain with example. अब ऐसा क्यों है कि आप लोगों के इस आंसर का साधारण जवाब क्यों नहीं हुआ? Because this exception is only when previous 2 sections थे ना, 5 and 6, sorry 6 and 7, जब वो एप्लीकेबल होंगे तब आपको सेक्शन 8 का वो लगेगा।
बट आप वो एक्सेप्शन क्लॉज ले ही नहीं रहे हो तो इसमें की जरूरत ही नहीं है. Yes. Simpliciter, Section 8 has been made as a enabling provision that when a person wants to take the benefit of Section 6 and Section 7, so he cannot have two things at one go. एक तरफ तो डिसेबिलिटी की बात भी करेगा और दूसरी तरफ डिसेबिलिटी का बेनिफिट भी लेना चाहता है और साथ में ये भी कहता है कि मेरी लिमिटेशन रन करना शुरू ना करे डिसेबिलिटी सीज होने के बाद, राइट? तो उसे किसी एक तरफ रहना होगा. या तो वो कहेगा कि मेरी लिमिटेशन जो है इसलिए अलाइव है क्योंकि मुझे डिसेबिलिटी क्लोज से कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक? मेरा कोज ऑफ एक्शन हुआ था उसके हिसाब से मैं तो मान के चल रहा हूं, मैं सेक्शन 6 और 7 पे नहीं हूं. या वो कहे, अगर वो कहता है कि मैं सेक्शन 6 और 7 पे रिलाई कर रहा हूं तो उसकी लिमिटेशन वहीं से शुरू होगी जैसी डिसेबिलिटी सीज होगी, राइट? बोथ द थिंग्स विल नॉट गो हैंड इन हैंड. आइदर ही विल फॉल विद इन सेक्शन 8 इफ the section 6 or 7 are attracted by his pleadings, and if he is not taking the benefit, when he himself is not coming to the court alleging any disability to file his suit, then he will not be forced to take the benefit of 6 or 7. He will not be forced to take his limbs peripheral by within the parameters of section 6 or 7 or the limitation of 3 years. ठीक है, क्लियर? इस पे एक प्रॉपर आंसर लिखोगे आप अच्छा सा सब लोग, और इसमें क्या और भी कोई गुंजाइश है ये भी बताओगे, ठीक है? दिस इज ए क्वेश्चन फॉर मेंस एंड दिस कैन बी क्वेश्चन ऑफ इंटरव्यू इटसेल्फ. अच्छा जी, एक बात बताइए कि सेक्शन 3 जो है वो 4 और 24 से फ्री है या उसके अधीन है? उसके 3 के जो भी प्रोविजंस हैं, किताबों में नहीं देखना है. थोड़ा सा तो देख ले तो कैसी तो पढ़ा था. भाई इस तरीके से जीवन थोड़ी चलना है, फिर तो क्वेश्चन आंसर सेशन का मतलब ही खत्म हो गया. सेक्शन 3 स्पेसिफिकली कहता है कि भैया इट विल बी सब्जेक्ट टू द कंडीशंस ऑफ 4 to 24. क्यों कहता है? इसलिए कहता है कि सेक्शन 3 शुरुआत करता है बताने की कि आपका राइट कैसे कमेंस होगा, कहां से शुरू होगा, क्या दुकानदारी उसकी होगी. तो अगर 4 से 24 तक नहीं लगेंगे तो डिफरेंस आ जाएगा, क्योंकि सेक्शन 3 डिसेबिलिटी क्लोज है. कहता है कि भैया कोई भी चीज हम एंटरटेन नहीं करेंगे, पीरियड ऑफ लिमिटेशन खत्म हो गया. और पीरियड ऑफ लिमिटेशन शेड्यूल में बताया गया, शेड्यूल में बताया 3 साल. तो अगर 4 से 24 तक की हम बात नहीं करेंगे तो कभी कोई व्यक्ति बेनिफिट ही नहीं ले पाएगा, वो स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला हो जाएगा. तो सेक्शन 3 इज सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस मेड अंडर सेक्शन 4 to 24. ठीक है, चलिए अगला सवाल बताइए. सेट ऑफ, अभी भी कुछ लोग नोट्स और किताबों की तरफ देख रहे हैं. सेट ऑफ और काउंटर क्लेम कब इंस्टीट्यूटेड किए हुए माने जाने चाहिए? बताइए. सेट ऑफ जिस दिन प्लीडेड करा जाएगा उसी दिन से उसको माना जाएगा कि इंस्टीट्यूट किया गया है. क्या प्लीडेड किया और जाएगा? काउंटर सर डब्ल्यूएस के अंदर सेट ऑफ जब लाया जाएगा और रिकॉर्ड पक्का? उसी सेम. जी सर. गलत जवाब. और कोई? With the plaint, it is considered to be filed on the date the plaint is filed. फाइल्ड नहीं, फाइलिंग की तो डेट होती Suit है. is filed. प्लीडेड Suit. इंस्टीट्यूट suit is वर्ड यूज considered करो. Institute. Okay. फाइलिंग तो एक अलग चीज है. The day suit is instituted. The set off will be deemed to have Correct. been instituted on the same date as the plaint is. The plaint is. Right. And counterclaim, The day it is instituted. Because it is separate. separate. it is made in the court, it is filed before the court, it is presented before the Separate. court. Let me tell you very honestly, the command over the language is the biggest thing, be it advocacy or be it exam. आप 4 पेज का आंसर लिखाओगे कोई नंबर नहीं मिलेंगे, आप उसी को 10 लाइन में लिखाएंगे, लेकिन जितना आपको कन्वे करना है कर दोगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे. एंड सेम अप्लाइज टू द जुडिशियल, सेम अप्लाइज टू योर लिटिगेशन आल्सो. जज को आप कम से कम शब्दों में अपनी बात कन्वे कर दी, उसे क्लियर कट समझ में आ जाना चाहिए. आपने कहानी तो गाई, राम भरोसे जिंदा हुए, उनके 4 बच्चे थे, 3 बच्चे मर गए, पर मरने से पहले उन्होंने दूसरी बीवी थी, उससे 4 बच्चे और हो गए.
उन 4 बच्चों की वजह से अब 5 हिस्से हो गए, परंतु जब तक 5 हिस्से होते तब तक राम भरोसे ने एक वसीयत कर दी और वसीयत में ये था, राइट। अब अगर इसी बात को आप सिंपल कह सकते थे कि भैया जो व्यक्ति मरा है उसने एक वसीयत की थी, वसीयत के बेनिफिशियरी ये थे, लेकिन बेनिफिशियरी के खिलाफ मेरा क्लेम ये है कि वसीयत फर्जी है, राइट। सो बी वेरी स्पेसिफिक विद द यूसेज ऑफ योर वर्ड्स। चलिए अगला सवाल। सेक्शन 5 of limitation act, whether it extends the period of limitation, अगर नहीं तो क्या बढ़ाता है ये? सेक्शन 5 का टाइटल देख ले। हाँ, फिर तो सबको पता ही है, टाइटल लिख के तो सबको समझ में आता है। सेक्शन 5 क्या है भूल Except गए, the- वो नहीं याद रहता। it is extension of prescribed It period. deals with the except with the order 21, that is execution. ये कौन बीच में बोला? मैंने सवाल जो मैं पूछ रहा हूं उसको आप लोग ध्यान से सुन नहीं रहे। सवाल को ध्यान से सुनने के बाद जवाब दिया करो। मैंने सवाल पूछा था, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि भैया सेक्शन 5 क्या एक्सटेंड करता है? पीरियड ऑफ लिमिटेशन एक्सटेंड करता है, कुछ और? सनी ने जवाब दिया, सही जवाब दिया। इट बेसिकली एक्सटेंड द प्रेस्क्राइब्ड पीरियड। व्हाई? बिकॉज देयर इज नो प्रोविजन इन द लिमिटेशन एक्ट टू एक्सटेंड द पीरियड ऑफ लिमिटेशन। क्योंकि अगर पीरियड ऑफ लिमिटेशन को एक्सटेंड करने की बात आप करेंगे फिर तो हर डेट केस में शेड्यूल में जो प्रेस्क्राइब्ड है, शेड्यूल में जो लिखा हुआ वो बदल जाएगा। और शेड्यूल एक स्टैटिक चीज है जो लेजिस्लेचर ने बना दी, वो नहीं बदलती, राइट। नेक्स्ट अगला सवाल। सेक्शन 6 किन किन चीजों पे लागू होता है? कैसी कैसी प्रोसीडिंग्स पे? बताइए। सर अब डिसेबिलिटी पूछ रहे हैं इनडायरेक्टली। मैं पूछ रहा हूं कि सेक्शन 6 किन प्रोसीडिंग्स पे लागू होता है? डिसेबिलिटी तक तो पहुंचा ही नहीं। कौन सी कार्रवाइयां हैं जिन पे सेक्शन 6 लागू होता है? सर अपील पे नहीं होता, इतना याद है। जस्ट सूट और एप्लीकेशन पे होता Execution, है। institution for suit or application. Or a minor एग्जीक्यूशन is पे होता है, filing a सूट पे suit. भी होता है, अपील पे नहीं होता। Or as a minor or a unsound mind is filing, instituting a suit. सेक्शन 6 जो है सेक्शन 5 से यही बातों में डिफर करता है, ठीक। सेक्शन 6 जो है इसलिए बनाया था क्योंकि जहां 5 का कोई लेना देना नहीं है, ठीक। 5 ऐसा नहीं है कि 6 वाले केस में 5 लागू नहीं होगा, लेकिन सेक्शन 6 स्पेसिफिकली ऐसी कंडीशंस के लिए बनाया था जब कभी हम किसी चीज की शुरुआत ही नहीं कर पा रहे हैं। और शुरुआत कहां से होती है? एक तो ट्रायल के कमेंसमेंट से। वो कहां से होती है? मुकदमे से। मुकदमा क्या है? सूट। या उसके खत्म होने के बाद उसकी एग्जीक्यूशन से, ठीक है। तो इन दो चीजों के लिए वो स्पेसिफिक प्रोविजंस की फॉर्म में बनाया गया, राइट। क्यों? डिसेबल आदमी ने मुकदमा एक बार जब उसकी डेबिलिटी क्लोज खत्म हो गई, मान लो माइनर था, माइनर के बिहाफ पे किसी ने मुकदमा फाइल कर दिया, गलत या सही हम बात की बात करेंगे, तो गया 6, डिसेबिलिटी का लेना देना यहाँ बचा नहीं। बाद में वो चैलेंज कर दे कि फ्रॉडुलेंट थी डिग्री, मेरा ध्यान नहीं रखा गया, मेरे राइट को ध्यान नहीं रखा गया, गलत बात है, ठीक है। तो मुकदमा और व्हाट? एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन। दीज आर टू इंपॉर्टेंट थिंग्स विच विल बी कवर्ड बाय सेक्शन 6, जिनके मेन उद्देश्य के लिए आपका सेक्शन 6 इन्वोक किया जाना है और लेजिस्लेचर ने बनाया। चलिए अगला सवाल। ये बताइए कि सब मेरी तरफ देखते हुए बताएंगे कि भैया सेक्शन 6 में जो डिसेबिलिटी बताएगी कितनी है और उनका नाम क्या है? सनी। तो 3 है। Some minor, insane and idiot person, and What is minor the- inclusive of child in the womb. What is the difference between insane and idiot? ये मुझे याद नहीं है। Anybody? Insane is properly unsound and Insane idiot who person- cannot give his consent. बोलिए। It's the other way around.
Idiot is completely incapable of understanding anything or any of his rights. And insane has some awareness, but not 100% awareness. आपकी आवाज नहीं आ रही. इडियट की हिंदी क्या थी? जड़ बुद्धि. जड़ कह सकते हैं, जड़ मूर्ख कह सकते हैं. चलिए आगे. हाँ, ये जड़ बताइए मूर्ख. हाँ. कि सिंगल और मल्टीपल डिसेबिलिटी सेक्शन 6 में क्या फर्क डालती हैं मोटा मोटा? बोलिए सनी. सर सेक्शन 6(2) बात करता है कि अगर किसी व्यक्ति को 2 डिसेबिलिटीज होती है तो वो दोनों डिसेबिलिटीज खत्म होने के बाद ही उसका प्रिस्क्राइब पीरियड शुरू होगा, जो 3 साल का दिया गया हुआ है. और अगर किसी 6(3) ये बात करता है कि अगर किसी व्यक्ति को एक डिसेबिलिटी के चलते हुए दूसरी डिसेबिलिटी हो जाती है और एक सीज हो जाती है और एक चलती रहती है, तो जो दूसरी सब्सिक्वेंट डिसेबिलिटी जो हुई है वो खत्म होने के बाद उसका लिमिटेशन प्रिस्क्राइब शुरू होगा. गुड. और एनी अदर थिंग? और सर एक सर उसमें 6(3) ये था कि अगर वह व्यक्ति मर जाता है तो मरने के बाद उसका जो LR होगा वो विदिन 3 years उस केस को फाइल कर सकता है. और LR भी डिसेबल हो तो आगे उसके भी आगे चला जाएगा सर, सेम 1 और 2 अप्लाई हो जाएंगे जैसे. चलिए, तो सेक्शन 6 बेसिकली स्पीक्स अबाउट द सिंगल और मल्टीपल डिसेबिलिटीज एज enshrined being 3 in nature. When a person is having a single disability, until unless the disability ceases, the cause of action to file the period of limitation will not start running. But as soon as it ceases, it will run for only 3 years. When he is having 2 similarly situated or consecutive but without any break in between, then until unless both the disability ceases, his right to file as far as the limitation is concerned will not start. All right, so as soon as the disability ceases in both the manner, he will have a right, or the period of limitation will start running, that will go up to 3 years alone. ठीक. चलिए, अभी मैं आपको दोबारा एक लिंक भेजूंगा अगेन बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ टाइम रिमेनिंग. भेजता हूं, 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, देन विल स्टार्ट अगेन.